میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان ملک صدق کا طور اور سردار کاہن کے تحت کرنے میں کچھ وقت گزارنا چاہوں گا۔ ہارون کا طور موسیٰ کے شریعت میں ملتا ہے جو پرانے عہد نامہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہارون وہ نہیں تھا جسے خدا نے پہلا سردار کاہن مقرر کیا تھا؟ اسے لاوی کا طور بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ لاوی اس قبیلے کا نام تھا جس سے ہارون تعلق رکھتا تھا، اس لیے وہاں ہارون کا طور تھا۔ لیکن نئے عہد نامہ کی شریعت میں کون سا طور موجود ہے؟ یہ ملک صدق کا طور ہے۔ اس لیے آج عنوان ملک صدق کا طور اور سردار کاہن کے ساتھ ہم احتیاط سے ملک صدق کی سچائی میں خدا کی مرضی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کے تمام بنی نوع انسان کے ساتھ کیا ہوگا جو ملک صدق کے طور میں نہیں ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ملک صدق کے طور میں ہیں، خدا کی برکت کا وعدہ کیا ہے؟ آئیں اس معاملے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگرچہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ سکڑا ہے جس پر ہم اب چل رہے ہیں، پر مجھے امید ہے کہ آپ اور میں ان لوگوں کی رہنمائی کریں گے جو اس تنگ دروازے سے زندگی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم عبرانیوں کی کتاب باب 4 سے دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں باب 4 آیت 14۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی بڑا سردار کاہن کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع۔ عبرانیوں باب 4 میں وہ کون سا لقب ہے جو یسوع کو بخشا گیا ہے؟ انہیں بڑا سردار کاہن کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہم ان لوگوں کو کاہن نہیں کہتے ہیں جو عبادت میں رہنمائی کرتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں قربانیوں کی نگرانی کرنے والے۔ پرانے عہد نامہ کے زمانہ میں پرانے عہد کی قربانی کا ضابطہ تھا، اور نئے عہد نامہ کے زمانہ میں نئے عہد کی قربانی کا ضابطہ ہے۔ ہم اس قربانی کو جدید اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں۔ پھر بھی یہ لکھا ہے کہ ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع۔ یسوع کس طور کے سردار کاہن تھے؟ ہارون کا طور بھی ہے اور ملک صدق کا طور بھی ہے۔ جب ہم اس منظر پر غور کریں جہاں یسوع کو سردار کاہن کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تو ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کے زمانہ میں بھی عبادت کے ضابطے موجود ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھ سکتے؟ اگر عبادت کے لیے ضابطے نہ ہوتے تو کاہن کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیا ایسے ضابطوں کی وجہ سے کاہن وجود رکھتا اور لازم نہیں ہے؟ کہانت کے کس طور سے ان کا تعلق ہے؟ آئیں عبرانیوں باب 5 آیت 5 دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں باب 5 آیت 5۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اسے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو کس طور پر؟ ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ یسوع کو ملک صدق کے طور پر سردار کاہن کہا گیا ہے۔ آیت 7۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے انہیں خدا کی طرف سے کون سا خطاب ملا؟ ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ بس ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ یسوع کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بننے کی نبوت کی گئی ہے۔
तो फिर मल्कीसिदक के तौर को मुकम्मल तौर पर समझने की गर्ज से हमें जानना चाहिए कि मल्कीसिदक कौन है। किताब मुक़द्दस में मल्कीसिदक के पहले ज़ुहूर को देखने के लिए आए पैदाइश बाब 14 की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वो किस किस्म का शख्स था। आए पैदाइश बाब 14 आयत 17 की तरफ जाते हैं। पैदाइश बाब 14 आयत 17। और जब वो किदरला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सीवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। और मल्कीसिदक सालम का बादशाह वो क्या लाया? रोटी और मैं लाया। और वो खुदा ताला का काहिन था। और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। यहाँ इस मंजर में हम देख सकते हैं कि सालम का बादशाह मल्कीसिदक अब्राहम को रोटी और मैं से बरकत देने आया था। ताहम जब हम मल्कीसिदक के लक़ब को देखें तो किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि वो खुदा ताला का काहिन था। अब्राहम के ज़माने में जबकि काहिनों के भेड़ों, बकरों और दीगर जानवरों के खून से कुर्बानी करने के वाक़यात थे, तो रोटी और मैं के साथ कुर्बानियां गुजराने को वाकई एक मुनफरिद अमल के तौर पर देखा जा सकता है। जब हम मल्कीसिदक के मंजर को पुराने अहदनामा और नए अहदनामा दोनों के नुक्ता नज़र से देखें, पुराना अहदनामा अक्स के तौर पर काम करता है, ये हकीकत नहीं है। खुदा ने पुराने अहदनामा में दर्ज नबूवतों के वसीले दिखाया कि हकीकत बाद में आएगी, जिसे अक्स के जरिए जाहिर किया गया है। इन नबूवतों की तकमील के तौर पर इस ज़मीन पर कौन आया था? जैसा कि हमने अभी इब्रानियों बाब 5 आयत 8 में तस्दीक की है, यसू को खुदा की तरफ से मल्कीसिदक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। किताब मुक़द्दस हमें वाज़ेह तौर पर यह बताती है, जिस तरह मल्कीसिदक ने अब्राहम को रोटी और मैं से बरकत दी थी, क्या ऐसा मंजर नहीं होना चाहिए कि यसू मसीह ने भी, जो इस ज़मीन पर तकमील के तौर पर आए थे, लोगों को रोटी और मैं से बरकत दी थी? सच्चाई पर मबनी किताब मुक़द्दस के नुक्ता नज़र से ऐसा मंजर यकीनन जाहिर होना चाहिए, और वो फसा है। क्या हम मल्कीसिदक के तौर से ताल्लुक रखते हैं? क्या हम वाकई इबादत के दुरुस्त ज़ाब्ते की पैरवी कर रहे हैं या नहीं, जिसकी क़यादत यसू ने की थी? फसा की रोटी और मैं के तौर पर देखे जाने वाले निज़ाम से इसे वाज़ेह तौर पर मुमताज़ किया जा सकता है। इसलिए जो मल्कीसिदक के तौर की पैरवी नहीं करते, यानी जो लोग मल्कीसिदक की राह पर नहीं चलते, वो हरगिज़ हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि ऐसे लोग ऐसे मकाम पर हैं जहां वो पाकतरीन मकाम में दाखिल नहीं हो सकते। सबसे पहले आए उस मंजर की तस्दीक करें जहां यसू मसीह इस ज़मीन पर मल्कीसिदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर आए और बनीनू इंसान को रोटी और मैं के जरिए अब्दी जिंदगी से नवाजा। मत्ती बाब 26। मत्ती की किताब बाब 26 आयत 17 से देखते हैं। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यसू के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। और जैसा यसू ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। क्या हमें वो मंजर नहीं देखना चाहिए जहां उन्होंने फसा खाई थी? आयत 26 देखते हैं। जब वो खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। जब मल्कीसिदक ने अब्राहम को बरकत दी थी तो उस वक्त के तमाम काहिनों ने गुनाहों की माफी की रस्म में शरीक होने के लिए
भेड़ों, बकरों और दीगर जानवरों के खून से कुर्बानियां गुजरानी थीं। ताहम मल्किसिदक ने उसे खास तौर पर कैसे बरकत दी? रोटी और मैं के साथ। फिर जब हम मत्ती बाब 26 का मंजर देखें तो यसु ने भी बरकत देने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? यसु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। आयत 27। फिर प्याला लेकर, प्याले में क्या था? ये मैं थी। इसलिए उन्होंने मैं का प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। यूं उन्होंने बनी आदम को इजाजत दी कि वो फसा की रोटी खाएं और फसा की मैं पिएं, जो उनके गोश्त और उनकी कीमती खून की लामत है। यहाँ कौन सा अहद कायम हुआ था? लूका बाब 22 में ये वाजे किया गया है कि खुदा ने फसा पर नया अहद कायम किया था। उन्होंने हमें बेशकीमत वादा बख्शा। अगर तुम आसमान की बादशाही में जाना चाहते हो तो तुम में हमेशा की जिंदगी होनी चाहिए। हमेशा की जिंदगी के बगैर कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने वादा किया था कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। सिर्फ यही वादा नहीं था, खुदा ने हमें आसमान में शाही काहिन बनने का वादा बख्शा है, हमेशा की जिंदगी और बरकत हासिल करने का वादा। और ये वादा कि वो एक ऐसे जहान को खोलेंगे जहां मौत, मातम, आहो नाला, दर्द या गम ना होगा। फिर सूरज या किसी और रोशनी की मोहताजी ना होगी, क्योंकि खुदा खुद नूर होंगे और सारी तारीकी को दूर करने वाले। अगर आप 1970 की दहाई में वापस जाएं, तो आप दही इलाकों में बहुत सी कच्ची सड़कें देखेंगे। ऐसे शहरों में लोग तारकोल बिछाकर वाकई खुश होते थे। ताहम आसमानी यरूशलेम हैकल की सड़कें किस चीज से बनी हैं? उस शहर की सड़कें खाली सोने की हैं, जो बलौर की तरह शिफाफ हैं, और घर कीमती जवाहर से आरास्ता हैं। क्या मैं वाकई ऐसी शानदार जगह में रह सकता हूं? वो शहर जहां हम रहेंगे, हर तरफ मुख्तलिफ कीमती जवाहिर जैसे कि मोतियों, नीलम, याकूत और जमुर्द से आरास्ता है, और तमाम सड़कें खाली सोने की हैं। किताब मुक़द्दस आसमान की बादशाही को ऐसे मनाजिर में बयान करती है, क्योंकि इसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये उन चीजों से बालातर है जिसकी लोग इस जमीन पर सबसे ज्यादा ख्वाहिश करते हैं। हमें उस मौता जगह पर ले जाने के लिए खुदा ने इस जमीन पर मल्किसिदक का तौर कहलाने वाली सच्चाई कायम की है। वो इस जमीन पर मल्किसिदक की हकीकत के तौर पर आए थे, और उन्होंने खुदा पर सच्चा ईमान रखने वालों को रोटी और मैं यानी फसा की पाक रस्म के जरिए जमा किया था। जो लोग इस दौर में दाखिल होने में नाकाम रहते हैं, वो आसमान की अब्दी बादशाही में वापस नहीं लौट सकते। आप सब, क्या आपने मुताला नहीं किया कि ये जमीन पनाह के शहर की मानिंद है? क्या ये सच नहीं है कि सरदार काहिन के मरने के बाद ही पनाह के शहर में तमाम गुनाहगार अपने इल्जाम और कसूर को छोड़कर अपने वतन को लौट सकते हैं? तो फिर किताब मुक़द्दस बार बार यसु मसीह पर सरदार काहिन के तौर पर क्यों जोर देती है? जैसे कि पुराने अहदनामा की नबूवत निजाम पनाह के शहर की तरफ इशारा करती है, सिर्फ ममसू सरदार काहिन यसु मसीह की मौत पर ही तमाम बने इंसान के लिए आसमान की बादशाही में लौटने की राह खुलती है। कौन सी ईद उनकी मौत की यादगारी और ताज़ीम करती है? ये फसा है। तुम खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। क्या ये पहले कुरिन्थियों की किताब के 11वें बाब में नहीं लिखा है? जब हम इन मुख्तलिफ मनाजिर पर गौर करें तो मल्किसिदक का तौर बहुत अहम साबित होता है। पुराने अहदनामा में खुदा सिर्फ लावी काहिनों के गुजरानी गई इबादत और कुर्बानियां कबूल करते थे। नए अहद के जमाना में
यानी नए अहदनामा के ज़माना में खुदा किसी भी किस्म की इबादत को कबूल नहीं करते जो मल्किसिदक के तौर के मुताबिक ना हो। इस हवाले से क्या यसू ने यूहन्ना की इंजील में ये नहीं कहा था कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रसिद्ध करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रसिद्ध करते हैं? आजकल ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां दुरुस्त समझ के बगैर इबादत होती है। वो हता कि ये नहीं जानते कि अभी किसकी प्रसिद्ध कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कबूलियत के लिए महज नाम लेना ही काफी है। ताहम मत्ती बाब 7 में क्या यसू ने यह नहीं कहा था कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा जो बाप की मर्जी पर चलेगा। उसी तरह कोई भी मल्किसिदक के तौर पर चले बगैर खुदा के अब्दी वादा में शरीक नहीं हो सकता। आए हम किताब मुक़द्दस में फराहम करदा शवाहिद से इसका मज़ीद जायजा लेते हैं। इब्रानियों की किताब के बाब 6 की तरफ जाते हैं। इब्रानियों बाब 6 आयत 17। यहां यह कहा गया है कि इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारिसों पर, ये कौन लोग हैं? ये खुदा के वादा के वारिस हैं, वो जो मल्किसिदक के तौर पर चलते हैं। उन्हें खुदा का वादा बतौर मिरास मिलने की जमानत दी गई है। उन्हें वादा के फर्जंद और औरत की बाकी औलाद कहा गया है। किताब मुक़द्दस उन्हें खुदा के हुक्मों को पाक मानने वाले के तौर पर बयान करती है। आए इसकी तस्दीक जारी रखते हैं। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारिसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो वो क्या दरमियान में लाए थे? कसम को दरमियान में लाया। क्या कसम का मतलब ये नहीं है कि वो इसे यकीनन पूरा करेंगे? ये एक मुतलिक और ला तब्दील वादा है। किसने वादा किया था? खुदा ने किया था। किसके जरिए से? ये कहा गया है कि वो कसम को दरमियान में लाए। आयत 18, ताकि दो बेतब्दील चीजों के बायस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिल जमई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लाएं। वो ये उम्मीद कि हम खुदा के वादा के वारिस होंगे हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यसू हमेशा के लिए किस तौर पर? मल्किसिदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। यसू मसीह मल्किसिदक के तौर पर अब तक सरदार काहिन है। चूंकि ये लिखा है कि वो अब तक सरदार काहिन है, तो क्या इसकी कोई आर्जी हद है? नहीं। उनकी पहली आमद से शुरू होकर ये हरगिज खत्म ना होगा जब तक कि हम खुदा की अब्दी बादशाही में पहुंच ना जाएं। वो हमेशा के लिए मल्किसिदक के तौर पर सरदार काहिन कहलाते थे, जो ना बदलता है ना गायब होता है। तो फिर नए अहद की फसा की सच्चाई का क्या होना चाहिए, जो मल्किसिदक का तौर है? क्या इसे ऐसी सच्चाई नहीं बनना चाहिए जो हमेशा के लिए गायब नहीं होगी? मसीह जो हमसे पहले चले गए, उनके नक्शे कदम पर कौन चलता है? आयत 19 दोबारा देखते हैं। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यसू हमेशा के लिए मल्किसिदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। अगर मसीह की तरफ से इख्तियार की जाने वाली राह यही है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी पैरवी करने के काबिल होना चाहिए। हमारे पास किस किस्म का तौर होना चाहिए? मल्किसिदक का तौर। ये हारून का तौर नहीं है। इसका मतलब है कि हम सबको वो लोग बनना चाहिए जो मल्किसिदक के तौर पर चलते हैं। ये वही लोग हैं जो उस वादा के वारिस हैं जिसका जिक्र पहले आयत 17 में किया गया था। तो फिर वो जो मल्किसिदक के तौर में नहीं है, क्या वो खुदा के वादा के वारिस हो सकते हैं? हरगिज नहीं। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी का वादा और आसमान में शाही कहानत का ओहदा बख्शा है।
और साथ ही ऐसा जहान भी बख्शा है जहां ना मौत होगी, ना आंसू, ना दर्द, ना गम, ना मातम और ना ही ज्यादा दुख। वो हम पर ऐसा जहान खोलेंगे। उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम आसमान की बादशाही में अब तक हमेशा की जिंदगी और बरकत को लुत्फ उठाएंगे। इसलिए जिन लोगों को ये वादे दिए गए हैं उन सबको मलके सिद्दीक के तौर की पैरवी करनी चाहिए और वफादारी से मसीह के कामों की पैरवी करनी चाहिए जो इस जमीन पर मलके सिद्दीक की हकीकत के तौर पर आए थे। वरना वो उस वादा में शरीक नहीं होंगे। तो फिर आइए यीशु का मंजर देखते हैं जो इस जमीन पर मलके सिद्दीक के तौर पर रोटी और मैल आए थे। लूका बाब 22 से एक बार फिर इसकी तस्दीक करते हैं। लूका बाब 22 आयत 7। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने फसा की तैयारी की थी। आयत 14 की तरफ जाते हैं। जब वक्त हो गया, यानी फसा मनाने का वक्त हो गया, तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु ने पेशतरी देख लिया था कि कैसे वो अगले दिन यहूदियों और गैर कौमों समेत बहुत से मुखालफिन के हाथों मसलूब होंगे। ये पिछला दिन था, यानी उस लम्हा से एक दिन पहले, यीशु की तजलील से एक दिन पहले उन्होंने कहा, एक वजह है कि मुझे ये फसा तुम्हारे साथ मनानी है। आयत 19 पर जाते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। उस वक्त यहूदी पुराने अहदनामा में मूसा की शरीयत के ज़ाब्तों को मानते थे। ताहम यीशु ने इसे वैसे ही मनाया जैसे पैदाइश बाब 14 में जाहिर होने वाले मलके सिद्दीक ने मनाया था। उसने किसके साथ मनाई थी? रोटी के साथ। आयत 19 में रोटी जाहिर होती है। आयत 20 देखते हैं। और इसी तरह खाने के बाद प्याले में क्या था? मैं। बस उन्होंने मैं का प्याला ये कहकर दिया कि ये मैं का प्याला क्या है? मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। जैसा कि पुराने अहदनामा के वक्तों में मलके सिद्दीक ने अब्राहम को रोटी और मैं से बरकत दी थी, हम वो मंजर देख सकते हैं जहां मसीह यानी मलके सिद्दीक की हकीकत नोए बशर को रोटी और मैं के जरिए हमेशा की जिंदगी की बरकत बख्शते हैं। तब रोटी और मैं लेते हुए उन्होंने कहा, ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है। और यूहन्ना बाब 6 में उन्होंने हमसे दूसरा वादा क्या किया था? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। खुदा ने यह वादा दर्ज किया था। चूंकि यीशु इस जमीन पर मलके सिद्दीक की हकीकत और सरदार काहिन के तौर पर आए थे, तो क्या हम मसीह के कुर्बानी के ज़ाब्ते की पैरवी करते हुए हमेशा की जिंदगी की हकीकी बरकत में आगे बढ़ने के काबिल नहीं होंगे? दूसरे अल्फाज में इसे निजात के वादा के तौर पर देखा जा सकता है। आजकल दुनिया में बेशुमार कलीसियाएं हैं, मगर वो फसा नहीं मनाती। इसका मतलब है कि वो मलके सिद्दीक के तौर पर सरदार काहिन मसीह की इबादत में शरीक नहीं है। सादा लफ्जों में कहें तो इसका मतलब है कि वो यीशु के वादा से खारिज हैं। बस अगरचे वो कहते हैं, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? यीशु क्या कहेंगे, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। अगर तुम वाकई मेरे लोग हो तो मलके सिद्दीक के तौर में क्यों नहीं हो? तुम्हारी कलीसिया के नजरिए में फसा शामिल क्यों नहीं है? किताब मुक़द्दस के जरिए मैंने बेशुमार बार तुम्हें बताया है कि मैं मलके सिद्दीक के तौर पर सरदार काहिन हूं। फिर भी तुमने आखिरकार इस पर अमल नहीं किया या इसका यकीन नहीं किया। क्या तुमने किया था? अगर तुम मुझ पर ईमान रखने का दावा करते हो
तो क्या तुम्हें मल्के सिद्दक के तौर में नहीं होना चाहिए? इसे मत्ती बाब 7 में पाए जाने वाले उनके कलाम के वसीह ज़मरे में शामिल करते हुए भी देखा जा सकता है कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए इब्रानियों बाब 9 देखते हैं। बाब 9 आयत 11। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो फिर यसु किस तौर के सरदार काहिन बनकर आए थे? वो मल्की सिदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर आए थे। मल्की सिदक का तौर क्या है? ये अच्छी चीजों के तौर पर दर्ज है। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं। बकरों और बछड़ों के खून का ताल्लुक किस तौर से है? कुर्बानी का ऐसा ज़ाब्ता हारून के तौर से ताल्लुक रखता है, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। आयत 13। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो किस किस्म का दरमियानी है? क्या लूका बाब 22 में फसा को नया अहद नहीं कहा गया है? वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। नए अहद की फसा के जरिए खुदा ने अपने फर्जंदों के लिए वादा में शरीक होने की राह खोली है। हमें वादा के वारिस बनाने की गर्ज से खुदा ने हमें मल्की सिदक के तौर पर चलने का हुक्म दिया है। आए हम इफिसियों बाब 3 आयत 6 की तरफ जाते हुए इसके पीछे खुदा की मर्जी देखते हैं। आयत 6 से देखते हैं। यानी ये कि वो किस में शरीक हैं? मसीह यसू में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से आप सब खुशखबरी की सेहत को जाहिर करती है। नए अहद को गैर कौमें क्या हैं? मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। आज खुदा ने हमें ऐसे फर्जंद बनने के लिए बुलाया है जो खुदा की तैयार करदा अब्दी मिरास के वादा में दाखिल हो सकते हैं। तो फिर उनका क्या होगा जो मल्की सिदक के तौर में नहीं है? इस मुवाद को सरसरी लेने से वो हरगिज खुदा के वादा में दाखिल नहीं हो सकते। ऐ खुदावन, हमने तेरे नाम से नबूवत की और तेरे नाम से बदरूहों को निकाला और बहुत से मौजे दिखाए। चाहे वो दिन रात कितना ही चिल्लाएं, खुदा कहेंगे, तो फिर तुम मल्की सिदक के तौर में शरीक क्यों नहीं हुए? अगर तुम दिन रात ऐ खुदावंद कहते हो, तो क्या तुम्हें मल्की सिदक के तौर में शरीक नहीं होना चाहिए था? तो फिर उनके साथ क्या होगा? क्या उनके पास कहने को कुछ होगा? उनके मुंह बंद हो जाएंगे। किताब मुक़द्दस इसे यूं बयान करती है, उनके पास कहने को कुछ ना होगा। मल्की सिदक के तौर के तहत उनके नतीजे और हमारे मुस्तकबिल के नतीजे में वाकई एक वाज़ेह फर्क है। खुदा हमें मल्की सिदक के तौर के जरिए ऐसा खूबसूरत और पुरफजल मुस्तकबिल और आसमान की बादशाही की जिंदा उम्मीद बख्शते हैं। फसा वो दिन है जब हम तस्दीक कर सकते हैं कि हम इस अजीम तौर का हिस्सा हैं। फसा की रोटी और मैं महज रोटी का टुकड़ा और मैं का प्याला नहीं है। आए हम एक बार फिर याद रखें कि ये तमाम वादे इसमें समाये हुए हैं। आए सरदार काहिन मसीह की जिंदगी की पैरवी करें, जो हमसे पहले मल्की सिदक की राह पर चले और आखिर तक सच्चाई की राह पर चलें, ताकि हम अपने बाप और माँ से मिरास यानी आसमानी जिंदगी की बरकत हासिल कर सकें।
آئے ہم مستعدی سے اس شاندار اور خوشی کی خبر کو دور دراز تک پھیلائیں تاکہ بہتری نجات میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ اور میں دوسروں کی نجات کو رہنمائی کرنے والے بنیں گے۔ میں آج کا واز ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔